I am Anand and you are watching online live class of Join for Education. Today I am going to continue biomolecules. Yesterday we have discussed some topics of biomolecules. Class 11 subject biology and we clear rest topics of this chapter biomolecules, clear the concept, a study about some notes and do some problems. तो कल हम लोग कुछ स्टडी कर चुके हैं, आज फिर स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं और इसी में से हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं लिपिड्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिपिड्स. आप ऐसा कीजिएगा, नोटबुक वगैरह लेके है ना? यस सर. तो नोट भी करते जाइएगा. Today we shall discuss about lipids. So first of all, we want to know what is the lipids. So these are, or lipids are esters of fatty acid and alcohol form 2% of the cell contents. So this is the definition or identification of the lipids. If anybody asks us what do you mean by lipids, then lipids are esters of fatty acid and alcohol. Yes sir. Form 2% of the cell contents. So after that we try to understand types of lipids. So types of lipids. So there are following types of lipids. Have you idea about lipids? लिपिड्स के बारे में कुछ आइडिया है तुमको? Are you? Yes sir. Then say. Then say. Sir, lipids are fatty acids. Sir, lipids are fatty acids with alcohol and form 2% of the cell content. It may be simple, compound, derived. Yeah, very good. There are so. Yes sir, and in sir, Following. it may be of three types, either simple, compound, or derived. In simple, we further get neural or waxes, Yeah, and very. in compound form we get glycolipid, lipholipid, phospholipid, and in derived form it is either oils or hard fats. Very And good. sir, many. Very good. So you have an idea about types of lipids and what is the lipids. So I am going to write, this is the simple uh, compound and Yes, sir. Compound third one derived. and derived. So there are following types of simple.
which are as follow: neutral or true fats. Next, waxes, and there are following types of compound, which are as follow. Number 1, phospholipids. Next, lipoproteins. Last, glycolipids. Types of derived that is hard fats, next oils. So this is the a synopsis of the lipids. ये lipids का एक छोटा सा जानकारी है. Once again we Yes, sir. ये सबसे पहले ईस्टर है. दिस इज द ईस्टर. ओके, Easter. ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल. ईस्टर ऑफ फैटी एसिड Yes, एंड sir. अल्कोहल. ओके, and Yes, sir. form 2% of the cell contents. अर्थात सेल में जो भी कंटेंट्स होता है, ठीक है, उसका 2% क्या होता है? Yes, sir. फैटी एसिड और अल्कोहल होता है. सर हमारा लिपिड्स होता है. या फिर हम लोग सीधा सीधी शब्दों में बोल सकते हैं, डायरेक्ट वे में, कि सेल में जो भी कंटेंट्स है, जो जो पार्ट है, उसका 2% लिपिड्स होता है. Yes. ठीक है. अगर इस तरह से क्वेश्चन Yes, पूछ दिया जाए yes. कि सेल का कितना परसेंट लिपिड्स होता है, अगर ऑप्शन आ जाता है 2%, 3%, Yes. 4%, 5%, तो मेरा Yes. जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा 2%. ओके. Yes, sir. Hope Yes, sir. that there is no problem to understand this explanation. इस एक्सप्लेनेशन को समझने में Yes. कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. ठीक है. आफ्टर दैट Yes, sir. we Sir, have, yeah, sir, here fatty acid and alcohol, ester of fatty acid and alcohol with an sir structure and this is the hydrocarbon. Ester is the hydrocarbon, and this is a yes, sir. common टॉपिक और नेम ऑफ द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं Yes. तो वहाँ पर हमको मिल जाता है ईस्टर्स. सो Yes, sir. काफ़ी इजी और कॉमन टॉपिक्स है. जब हम लोग केमिस्ट्री स्टडी करेंगे उस समय ईस्टर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे या फिर डिटेल्स करेंगे. तो अभी तुम नोट करके इसको रख लो. ठीक है. जब हम लोग केमिस्ट्री का क्लास करेंगे Yes, sir. उस समय इसको और डिटेल्स करेंगे. ठीक है. तो एक्चुअली में ईस्टर जो है Yes. आपका फैटी एसिड और अल्कोहल का जो ईस्टर होता है वो आपका सेल कंटेंट्स में प्रेजेंट होता है. Lipid. और सेल कंटेंट्स जितना भी है उसका 2%
यही ईस्टर्स या लिपिड्स होता है, ठीक है। और Yes. देयर आर Yes. 3 टाइप्स ऑफ लिपिड्स according to the class 11 और according to the syllabus of नीट। तो अगर नीट में बोल रहा है, देख लेते हैं। someone knocked me, so we are going to discuss about there are types of lipids, simple, compound and derived. So simple, it means that there are 2 types of simple. First one is neutral or true fats, and second one is the waxes. So there are following types of compound. So what is the compound here? Compound is a type of Phospholipid. compound is a type of what? Lipids. Lipid. Okay, lipids. ये lipids का एक types है. After that there are 3 types of compound lipids. Okay. Lipid. So Yes. read Riddhi. Sir, first, sir, compound lipids are of 3 types: phospholipid, lipoproteins, Lipoproteins. glycolipids. Lipoproteins and glycolipids. So there are 3 types of compound lipids. Yes. Okay. If any question asks us, Yes. how many types of compound lipids? 2 types, 3 types, 4 types, then the correct Yes, sir. option here will be 3 types. Sir, 3 types. Okay, there are 3 types of Yes, sir. compound lipids. So this is the phospholipids, Lipids. lipoproteins and glycolipids. Hope that there is no problem to understand this explanation. तो आशा करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. At last, this is the derived. Derived is also a kind of what? Lipids. Yes. Derived is also a kind of type of Yes, lipids. sir. And there are 2 types of derived lipids. Read Riddhi. The first one is the hard fats and second one is Yes, the oils. Okay, hope And that there is no problem. So Yes. totally we have 2 types of simple and 3 types of compound and 2 types of derived. So the total number of total number of the lipids will be 2 plus 3 5, 5 plus 2 7. तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ लिपिड्स कितने हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ व्हाट? क्लास 11 एंड नीट. अभी तो हम लोग इसको स्टडी कर रहा है पॉइंट ऑफ व्यू नीट से, ठीक है. ये जो डिस्कशन हो रहा है ये चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है नीट का. नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, नीट 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी इसका डिटेल्स कर रहा है या फिर स्टडी कर रहा है. इसमें हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर रहा है. इसका कुछ नोट्स है ज्वाइन फॉर एडुकेशन का अपना, उस नोट्स को ज्वाइन फॉर एडुकेशन आप लोगों के साथ डिटेल्स कर रहा है. और जैसे ही ये सारा चीज़ कंप्लीट होगा तो ज्वाइन फॉर एडुकेशन का अपना डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है. तो कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आज हम लोग कर लेंगे, ठीक है. तो शिवानी, आर यू लिसनिंग? और ऑडियो वीडियो के बारे में कुछ बताओ. यहाँ एक और है रिद्धि. शिवानी वीडियो ऑडियो ठीक है? सर आई थिंक सर लेफ्ट. अच्छा, सी लेफ्ट. अच्छा, ठीक है. तो सो दिस इज द compound and derived and total we have 7 types of what? Lipids. तो लिपिड्स हमारे कितने प्रकार के हो गए? 7 टाइप्स के. 7 टाइप्स. अगर आप इसको क्या रिमेम्बर हो गया नेम वगैरह? न्यूट्रल, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड हार्ड फैट्स एंड ऑयल्स. ऑयल्स भी क्या है? व्हाट इज द ऑयल्स? इज ए काइंड ऑफ लिपिड्स.
ठीक है। lipid. अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्लास को थोड़ा सा और डेवलप कर लेते हैं. Yes, sir. लेट्स डेवलप द क्लास. तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फैटी एसिड. फैटी एसिड को थोड़ा सा समझ Yes, लेते sir. हैं. व्हाट इज द फैटी एसिड. ठीक है. फैटी Yes, एसिड yes, sir. एंड अल्कोहल, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल. मतलब किसका ईस्टर, तो फैटी एसिड और अल्कोहल का जो ईस्टर होता है और जो सेल कंटेंट्स में Yes, 2% प्रेजेंट होता है वही लिपिड्स होता है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फैटी एसिड. हैव यू एनी आइडिया अबाउट फैटी एसिड्स. आपको फैटी एसिड के बारे में कुछ आइडिया है. कुछ आइडिया है. देन से टू मी. sir. Sir, हाँ. If you have any idea about fatty acid, then say what is the fatty acid. If you have any idea, do not open your textbook. आपको अपना किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो क्लियर करेंगे no, ही. sir. यदि आपके पास कुछ आइडिया है तो आप बोलिए, No, sir. अदरवाइज फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है. फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. ओके. Yes, yes, sir. So let's see here written statement of the fatty acid. Yes, sir. These are water in soluble long chain hydrocarbons. इट मीन्स दैट इसमें से आपका 4 to 36 कार्बन लॉन्ग. विथ 1 कार्बोऑक्साइल और कार्बोऑक्साइल do you know what is the formula of the carboxyl. पता है आपको. Yes, sir. then say to me. Sir, C, CN. no, COOH. कार्बोऑक्साइल. दिस इज ए ग्रुप. केमिस्ट्री में हम लोग Yes. इसको स्टडी करता है. ठीक है. Yes, sir. These are the simplest constituent of lipids. ठीक है. दिस इज द ए सिंपल डिटेल्स अबाउट फैटी एसिड. ये आपका फैटी एसिड्स का एक सिंपल sir. डिटेल्स है. दीज आर वाटर इन सॉल्युबल. ये क्या होता है, सॉल्युबल. इट Yes, मीन्स sir. दैट क्या, घुल जाना. और इन सॉल्युबल, Yes, sir. तो इट मीन्स दैट दीज आर वाटर इन सॉल्युबल. वाटर में ये इन सॉल्युबल होते हैं. और इसमें एक लॉन्ग चेन Yes, sir. हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कार्बन आपका जो होता है 4 to 36, एटलीस्ट 4 और एटमोस्ट 36 कार्बन होते हैं, जिसमें एक आपका Yes, sir. कार्बोऑक्साइल ग्रुप भी होता है. ओके.
These Yes. are the simplest constituent of lipids. Okay, from Yes. that there is no problem to understand the what Yes. fatty Sir, fatty acid. fatty acids. Okay, now we try to Yes. understand types of fatty acids. Okay, types of, Yes, sir. have you any idea about this Fatty one? acid. Types of fatty acids. Have Sir, you any? it could be saturated. Sir, it could be saturated, unsaturated. Yeah, very good, you are going in right. आप राइट जा रहे हैं. दिस इज द सैचुरेटेड एंड unsaturated. It means that Unsaturated. how many types of fatty acids? There are two types of fatty acids. So Yes, sir. I am going to write here. There are two types of what? Fatty acid. Fatty Acid. acids. Number one, saturated. Sir. Yes, sir. Okay, saturated fatty acids. Yes, sir. Number two, unsaturated. Unsaturated. So we try to understand what is the saturated fatty acids. Have you any idea about saturated fatty acids? Yes, sir. In saturated fatty acid, there is double bond. Do you know what is the Sir, there is. formula of this one? So CN, H2N and O2N. Yes, sir. The general formula of saturated acid is saturated acid is CN H2N and O2N. Yes, sir. This is the general formula. Okay, Yes. ये इसी फॉर्म में रहेगा CN, H2N और O2N. तो एटलीस्ट यहाँ पर कितना कार्बन लगाना होगा कम से कम? सर सर कम से कम यहाँ पे आप कंसंट्रेट नहीं है, कम से कम 4 to 36 बताए ना, तो एटलीस्ट कितना जाएगा? यस अगर 4 कार्बन लगा four- देते, 4 कार्बन लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर Yes, sir. 8 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन हो जाएगा. ओके यस सर. ओके, Yes, एनी sir. प्रॉब्लम? यस नो हाँ. सर. These do not possess any double
bond. Have you idea about double bond, single bond? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Yes, के sir. बारे में आइडिया है? अगर नहीं है तो इसको नोट करके रखिएगा, जब केमिस्ट्री करेंगे उस समय क्लियर करेंगे. देयर हाइड्रोकार्बन chain and are Yes. solid at room temperature. Okay, once again we repeat these. एक्चुअली में ये सारा टॉपिक Yes, जो sir. डिस्कस हम लोग कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू नीट Yes, sir. 2023 ही है. ठीक है. Yes, नीट sir. 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका किया जा रहा है. अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर वी आर सीइंग दैट टाइप्स ऑफ फैटी एसिड. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स. फर्स्ट वन इज व्हाट? Saturated. Saturated fatty acid. And second one is unsaturated fatty acid. Okay. Yes, sir. And the general formula of the saturated acid is CN. CnH2nO2n. So it means that according to the formula it is clear that it is a kind of hydrocarbon. ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है. Yes. And already we have Yes. studied either in class 11 and class 12 in the section of Yes, sir. organic chemistry. Organic chemistry जब हम लोग स्टडी कर रहा था तो वहाँ पर ऑलरेडी इसको हम Yes, लोग पढ़ चुका है. अभी इसको एक नोट्स के तौर पर बायोमॉलिक्यूल्स में एक नोट्स के तौर पर इसको हम लोग देख रहा है और थोड़ा सा डिटेल्स कर रहा है. तो एटलीस्ट एक बार फिर से रिद्धि बताओ कि फैटी एसिड्स Yes, में sir. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ लोवेस्ट कार्बन? Sir, 4. 4. And what is the highest number of carbon? Sir, 36. 36. तो इट इज़ वेरी इजी. इस तरह का यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भाई फैटी एसिड में Yes. कार्बन का रेंज क्या होता है, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द कार्बन? 5 to Sir, 37. 4 to 30. Options are in this way: 5 to 37, 6 to Yes, sir. 38, 4 to 36, and 2 to 15. Then what will be the correct option? Sir, 4 to 36. 4 to 36 is present in the option C. So the correct option for this question will be C. ठीक है? ओके. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन Yes, के sir. लिए करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा C हो जाएगा. ठीक है. एक बार फिर से रिपीट Yes, करते sir. हैं. 9:30 PM हो गया ना, तो आधा घंटा और. ठीक है. ठीक. यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार रिपीट करते हैं. Yes. बायोमॉलिक्यूल्स, Yes, दिस इज sir. द नेम ऑफ द चैप्टर, क्लास 11 बायोलॉजी. और पॉइंट ऑफ व्यू है नीट 2023. ओके. टुडे वी आर गोइंग टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. Today we are going to study or going to get some details about biomolecules in the form of notes and at last we do some practice problem. और लास्ट में हम लोग कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी करेंगे. कल तक Yes, sir. में हम लोग कुछ या अप टू यस्टरडे वी हैव स्टडीड सम टॉपिक्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स. तो बायोमॉलिक्यूल्स का कुछ टॉपिक्स Yes. हम लोग कल तक स्टडी कर चुका था. आज हम लोग शुरू किया लिपिड्स से. तुमको Yes. पता है लिपिड्स क्या है? एक्चुअली में ये सेल कंटेंट्स में 2% के रूप में रहता है, 2% के फॉर्म में रहता है. और ये एक्चुअली में फैटी Yes, एसिड sir. और अल्कोहल का ईस्टर है. ठीक है. Yes, sir. तो जब हम लोग Yes, sir. केमिस्ट्री का स्टडी करेंगे या आप 11 या 12 में जब हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे होंगे उस समय ईस्टर के बारे में आप Yes, sir. काफ़ी डिटेल्स ले चुके होंगे. सो दिस इज वन ऑफ द
familiar topic of hydrocarbon. It means that ester is a familiar topic of hydrocarbon in class 11, either in class 11 or 12. So hope that there is no problem to understand what is the ester. तो ईस्टर क्या है, यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग जब केमिस्ट्री करेंगे उस समय थोड़ा सा देख लेंगे। अभी टाइप्स ऑफ लिपिड्स को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। टाइप्स ऑफ लिपिड्स में टोटल टाइप्स ऑफ कितना होगा? सब टाइप्स टोटल 7 हो जाएगा। सब टाइप टोटल सब टाइप 7 हो जाएगा। अगर उस 7 को अगर हम फिर से छोटा कर दें तो 3 हो जाएगा, और 3 में फिर सिंपल होगा, कंपाउंड होगा और डिराइव्ड होगा। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंपल एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिराइव्ड, है ना। तो डिराइव्ड का कितना प्रकार होगा? 2 हो जाएगा सर 2, और सिंपल का भी आपका 2 हो जाएगा, और आपका कंपाउंड का भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है रिधि? 3 सॉरी, हाँ, कंपाउंड का 3, हाँ, कंपाउंड का 3 टाइप्स हो जाएगा। ठीक है, तो these are the compounds, types of the compound. yes Phospholipids, lipoproteins and glycolipids. glycolipid. If anybody asks you what do you mean by glycolipids, आप glycolipids से क्या समझते हैं, तो आप glycolipids के बारे में क्या क्या बता सकते हैं? Sir, glycolipids are the lipids sir, glycolipids are the lipids in which It means sir, that listen to me. If anybody asks us what do you mean by glycolipids, then very comfortably we reply. Glycolipids, sir, it is a it is a kind of type of compound lipid. It is a kind compound of lipid. compound Yes. lipid, and compound lipid is a kind of lipid. So it is very easy. ये Yes. 3 ही स्टेप जाएगा। ग्लाइकोलिपिड कंपाउंड लिपिड का एक काइंड है, एक प्रकार है, और कंपाउंड Yes. लिपिड जो है आपका लिपिड का एक प्रकार है। lipid type. ठीक है। Yes, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिराइव्ड, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, हार्ड फैट्स एंड ऑयल्स। Yes. यदि आपको पूछ दिया जाए Yes. कि भाई ऑयल्स क्या है, व्हाट इज ऑयल्स? Sir, oils are sir type of derived lipid, and derived lipid is a type of lipid. वेरी गुड। अब देखिए आपका फैटी एसिड यहाँ पर बताया है, ये कितने हाइड्रोकार्बन को कैरी करता है, सॉरी कार्बन को कितना कैरी करता है? 4 to 36। 4 to 36। इस तरह से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। अगर आपका कंसेप्ट ठीक Yes. रहेगा तो इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मैनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द फैटी एसिड्स, देन रेंज विल बी 4 to 36। ठीक है। Yes. अगर मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे दिया, हाउ मैनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द फैटी एसिड, आपका कंसेप्ट बिल्कुल Yes, sir. क्लियर है, 4 to 36। आपके पास ऑप्शन Yes, है sir. 1 2 3 4, 1 2 3 4, Yes. तो फिर क्या Yes, हो sir. जाएगा? Sir, तो 4 4 to last 30, of 4 to 36 के रेंज में 4 आ रहा है, तो फिर हमारा Yes, जो sir. करेक्ट ऑप्शन जो होगा 4 होगा। ओके। अगर Yes, इस तरह का ऑप्शन दे देता है 1, फिर दे दिया 39, फिर दे दिया 37 और फिर दे दिया 24, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो yes, जाएगा? sir, 24। 24। तो ये आप समझ गए। और अगर पूछा जाए कि फैटी एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, तो सर ये कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बो ऑक्साइल या ऑक्जाइल, एनी वन ऑफ दीज टू, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, आप किसी को भी कर सकते हैं। तो जब आप नीट का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का वहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, और जो करेक्ट ऑप्शन है वहाँ से पिक आउट करो। अगर आप करेक्ट ऑप्शन पिक आउट कर लेते हो तो उसके लिए जो मार्क्स है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक आउट करते हो तो फिर वहाँ से आपको नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है। Yes. तो Yes. ये भी फैटी एसिड में हमको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन सा Yes. ग्रुप उसमें प्रेजेंट Group. रहता है। ठीक है। तो कार्बो ऑक्साइड। Yes. ठीक है। Yes, sir. Yes. अब
after that, types of fatty acid. There are two types of fatty acid: saturated and unsaturated. The general formula Unsaturated. of the saturated fatty acid is CnH2n and O2n. O2N. Uh, After that, if we read this statement, these do not possess Yes, sir. any double bond. इसमें डबल बॉन्ड Yes, नहीं sir. होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का Yes, sir. हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड या जो भी हो, सैचुरेटेड एसिड जो है, इट इज ए काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में जब हम लोग स्टडी कर किए होंगे, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड आइदर इन क्लास 11 और 12 स्टडी किए होंगे, तो Yes. हाइड्रोकार्बन में 3 बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल, डबल और Yes. ट्रिपल, ठीक है। Sir. Yes. तो Yes, sir. तो यहाँ बोलता है कि दीज डू नॉट पॉसेस एनी डबल बॉन्ड, है Yes, ना। sir. इसका जो चेन बनेगा, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा, या जो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो बनेगा, किसका, फैटी एसिड का। और Sir, fatty acid. फैटी एसिड में ही एक प्रकार का क्या है, सैचुरेटेड एसिड है। सैचुरेटेड Yes, एसिड इज sir. ए काइंड ऑफ फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड Yes, एसिड sir. का आपका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, तब हम लोग बॉन्ड Yes, पर sir. प्रॉपर प्रिकेशन लेते हैं कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड से 2 कार्बन अटैच हो रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि इसमें डबल Yes. बॉन्ड नहीं होता है। ओके, यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन Yes, sir. आपको पूछ सकता है नीट में, कि भाई सैचुरेटेड Yes, sir. एसिड में डबल बॉन्ड होता है, कैन बी डबल बॉन्ड, कैन बी ट्रिपल बॉन्ड, कैन बी सिंगल Yes, sir. बॉन्ड एंड कैन नॉट एनी बॉन्ड। तो यहाँ पर तो अब तो दे दिया, सिंगल बॉन्ड तो यहाँ बता नहीं रहा है, डबल बॉन्ड होता नहीं है, ठीक है। Yes, तो sir. ये आपका एक Yes, बच जाता है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड का जो ऑप्शन होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, Yes, sir. ठीक है। तो Yes. Yes, sir. अभी हम लोग इतना किए, अब थोड़ा सा अनसैचुरेटेड एसिड को भी देख लेते हैं। इफ यू Yes. हैव एनी आइडिया अबाउट द अनसैचुरेटेड एसिड, यदि आपके पास अनसैचुरेटेड एसिड का कुछ आइडिया है तो आप बताइए। Sir, in unsaturated there is a double bond between hydrocarbon chain. वाह, ये डबल बॉन्ड वाले हो गए, और उधर Yes. डबल बॉन्ड नहीं थे, कौन। Sir, saturated acid, fatty acid. ठीक है, तो इसमें प्रोसेस करेगा 1 और मोर डबल बॉन्ड, ठीक है। एक या Yes, एक sir. से अधिक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। Yes, sir. लेकिन एटलीस्ट Yes. 1 डबल बॉन्ड तो होगा ही। तो डबल बॉन्ड Yes, sir. आप समझते हैं डबल बॉन्ड कैसा होता है। Yes, sir. सी लगा के, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ Yes. कर देते हैं, फिर सी डाल देते हैं, Yes, sir. ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, Yes, sir. ये क्लास 11 था, ये बायोमोलिक्यूल्स का नोट्स था, इसी को अभी हम लोग डील्स कर रहा था। तो आप यहाँ ट्राई Yes, टू sir. अंडरस्टैंड, यहाँ समझो। दिस इज द सी एंड Yes. this is the C. So this is what? Yes, sir. Double bond. Sir, Okay. double bond. It means that here this is the single bond, okay? Yes. And Yes. this is the triple bond. तो बस Yes. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से ही जुड़ा रहता है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर Yes. देख रहा था अनसैचुरेटेड एसिड। तो योर स्टेटमेंट इज Yes. टोटली करेक्ट, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट था। ये प्रोसेस करेगा Yes, sir. 1 और मोर देन 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, अनसैचुरेटेड Yes, एसिड। sir. इसका पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख लेते हैं। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपका सैचुरेटेड एसिड Yes, का sir. मॉलिक्यूलर फार्मूला था, ठीक है। सिमिलरली अनसैचुरेटेड Yes, sir. एसिड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो यहाँ लिखते हैं द मॉलिक्यूलर formula of what? Unsaturated acid. Yes, sir. This is Cn H2n plus 2
CnH2n minus 2. Okay, and Yes, sir. O2. Yes, sir. And unsaturated acid possess one or more double bond. Double bond. ओके, तो अनसैचुरेटेड Yes, sir. एसिड में आपका 1 to more डबल बॉन्ड होगा, और रूम टेम्परेचर पर भी इसमें कंसिडर किया जाता है कि रूम टेम्परेचर में क्या कंडीशन होगा. तो Yes, sir. आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में इसका स्टेट क्या होगा? लिक्विड होगा. Liquid. लिक्विड, व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड इज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस या Yes. मैटर का एक स्टेट होता है. ठीक है, तो एट Yes, sir. at room temperature the state of unsaturated acid is liquid. Liquid. ओके, ये लिक्विड Yes, वाले sir. फॉर्म में होगा अनसैचुरेटेड एसिड. कहाँ पर? Sir, रूम unsaturated room temperature. रूम टेम्परेचर में. ठीक है. Yes, sir. उसके बाद फिर आ जाता है एमिनो एसिड. तो अब हम लोग इसके बारे में कल स्टडी करेंगे. ठीक है, एमिनो एसिड वगैरह कुछ यहाँ पर जो है इसका कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देख लेते हैं आज. ठीक है, एक बार इसको फिर Yes. से Yes. रिकैप कर लेते हैं. आज हम लोग क्या क्या स्टडी Yes. किए. और वैसे हम इसका पीडीएफ जो है अभी जो किए पीडीएफ हम ग्रुप में शेयर कर देंगे. ठीक है, आज का टॉपिक आपका था Yes. बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 Yes. बायोलॉजी. और Yes. आपका स्टडी का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो नीट 2023 था. आज कंसेप्ट जानने का प्रयास Yes. कर रहे थे, कुछ नोट्स इसका जो है उसको स्टडी कर रहे थे. अभी कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेंगे. एंड हम लोग ये जानने का प्रयास किए कि भाई लिपिड क्या है विद द हेल्प ऑफ द डिफिनेशन. Yes. उसके बाद टाइप्स ऑफ Yes. लिपिड्स हम लोग समझ गए कि कितने टाइप्स होते हैं. Yes, sir. और फिर प्रत्येक का कितना टाइप्स होता है. अगर पूरा ओपन कर दिए तो हम लोगों के पास देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लिपिड्स. और ये 7 टाइप को अगर Yes. छोटा कर देते हैं तो ये 3 टाइप्स में आ जाएंगे. सिंपल, कंपाउंड और Yes, डिराइव्ड. sir. सिंपल आपके 2 प्रकार के, कंपाउंड 3 प्रकार के और डिराइव्ड आपके 2 प्रकार के. ठीक है, Yes. Yes, sir. तो 2 2 4 और 3 7. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ लिपिड्स. फिर हम लोग जानने Yes, का sir. प्रयास किए कि चूंकि लिपिड्स जो है आपका ईस्टर है फैटी एसिड का या अल्कोहल का, तो फिर हम लोग फैटी Yes. एसिड को भी थोड़ा सा जानने का प्रयास किए. दीज आर वाटर Yes. इनसॉल्युबल. ठीक है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन Chain of क्या five. है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास किए. इसमें कौन सा Yes, sir. ग्रुप है तो उसका नाम भी जान गए, कार्बोऑक्साइल ग्रुप या कार्बो ऑक्साइल ग्रुप. ठीक है, एनी Yes, वन ऑफ sir. दिस टू बोथ प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट. दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसके लिए करेक्ट है. और फिर टाइप्स sir. ऑफ फैटी एसिड भी थोड़ा सा जान गए. सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके मोलिकुलर Yes. फार्मूला को भी जान गए. और स्ट्रक्चरल फार्मूला में जब इसको Yes. कन्वर्ट किया जा रहा था तो ये बोला गया कि इसके पास डबल बॉन्ड नहीं होता है. वेर एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पास एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होता है.
दोनों में यही डिफर्ड है। और आज हम लोग यहीं पर इसको रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये आपका डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं बायोलॉजी, ये आपका सिलेबस बायोमोलिक्यूल्स, मैक्सिमम मार्क्स 180, मार्किंग स्कीम पता है ना आप लोग को? आपको पता है Yes, sir. नीट का मार्किंग Yes, sir. स्कीम क्या है? Sir, 4 marks for correct answer and 1 marks will be deducted for incorrect answer. तो यहाँ पर देखिए लिख भी दिए हैं आपका +4, मतलब 4 नंबर मिल जाएगा आपको अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो। अगर Yes, आप sir. गलती से इनकरेक्ट ऑप्शन को पिक आउट कर लेते हैं तो उसके लिए -1 है। इसको हम Yes. लोग करेंगे पूरा कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। इसके Yes, लिए sir. टाइम अलाउड रखे हैं इस चैप्टर के लिए 60 मिनट्स। तो सारा चीज़ तो करेंगे Yes. नहीं, अभी जो किए थे अभी थोड़ा सा एक आध दो देख लेते हैं, अगर लिपिड वगैरह से रिलेटेड होगा तो। अभी करंट हम लोग लिपिड किए ना, एंजाइम Yes, sir. ऑलरेडी हम लोग यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट एंजाइम वगैरह स्टडीड कर चुके थे। पॉलीसैकेराइड्स ये सब भी हम लोग यस्टरडे कर चुके थे। Polysaccharide. Yes, sir. अगर आप यहाँ पर यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर Yes, 21, sir. क्वेश्चन नंबर Yes, sir. 21 देखिए, रीड द क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ के क्वेश्चन नंबर 21 को रीड कीजिए, क्या कहता है? The helical structure of protein is stabilized by. अभी देखिए बोला हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा है, प्रोटीन्स है। इट मीन्स दैट लिपिड के बाद ही प्रोटीन जो है इट इज़ ए काइंड ऑफ लिपिड। अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे थे तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन आता है। तो इफ़ वी हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट द हेलिकल स्ट्रक्चर, अगर हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में यदि मेरे पास प्रॉपर आइडिया है, अब आपको हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा कहाँ? कहाँ मिल जाएगा हेलिकल स्ट्रक्चर? प्रोटीन जी नहीं, हेलिकल स्ट्रक्चर हमको मिलेगा केमिस्ट्री में, ठीक है। Yes. अगर मेरा केमिस्ट्री में वहाँ पर ठीक ठाक है हाइड्रोकार्बन वाला सेक्शन में, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर करेगा हेलिकल स्ट्रक्चर को। और जब हेलिकल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्लियर होगा तब हम बायोमोलिक्यूल में आएंगे और वहाँ पर प्रोटीन या लिपिड्स को देखेंगे और फिर यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन को पिक आउट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए ईस्टर है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है और डी सल्फाइड बॉन्ड्स है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। इट मीन्स दैट यदि आपको पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में पता है, आपको ईस्टर के बारे में पता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के बारे में पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में पता है, तो फिर आप इसके लिए करेक्ट ऑप्शन पिक आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट अभी जो हम लोग स्टडी किए उससे नहीं था, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं। अब इस तरह से हम लोग एनालिसिस करने के बाद कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। अगर मान लीजिए कि जितना अभी हम लोग स्टडी किए उस स्टडी में ये क्वेश्चन का कोई भी ऑप्शन जो है हमारे माइंड में आ ही नहीं रहा है, तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं अगर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन होगा लिपिड से, बिल्कुल होगा। ये पहला ही टॉपिक से ज़्यादा आपका था। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हिंट्स और सॉल्यूशन भी है, तो आप 21 को यहाँ पर देखिए। 21 के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। 21 के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी है। मतलब हाइड्रो बॉन्ड जो था
यहाँ फिर से 21 यहाँ देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ठीक है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये स्टेबलाइज्ड होता है, ना कि कार्बन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, यस तो इस तरह से Yes, हम sir. लोग और बाकी क्वेश्चन को भी करेंगे। और आज हम यहीं पर क्लास ओवर करते हैं। अभी हम इसको आपके साथ जो ये ऑनलाइन लाइव क्लास चला, इसको मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा, और इसको आप लोग आप इसको 2 बार 3 बार देख लेंगे, तो उधर जो बेसिक कंसेप्ट जो बताए थे वो आपके लिए कुछ बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास को ओवर करें। yes, sir. तो टुडे आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास, आज हम क्लास को ओवर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। Yes, फिर आपका जो रिक्वायरमेंट होगा ग्रुप में डालिएगा, हम आपके रिक्वायरमेंट को प्रयास करेंगे दूर करने का। ठीक है, आपका जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। टिल देन थैंक्स टू yes. you and okay, and I am going to Thank over you. the class. Thank you, sir. It's okay.